Good morning, students. So again, we'll take the remaining example of exercise 3.2a. In the previous lecture, we completed 6 examples of the first of same exercise 3.2a. Now we have to complete these 7 to 18 examples. So let us start from the first, that is 7th example. So it is an integration by substitution method. We can't integrate without substitution this. So let us see the example number 7. I is equal to example integrate with respect to x, e raised to x into log of sin e raised to x divided by tan e raised to x. D with respect to x means integrate with respect to x. So in substitution method, so most important thing is what is to be substituted. इसमें कौन सा एक पार्ट हमें पुट करना है t. So then we get the derivative of that function. That means ऐसा कौन सा पार्ट है कि उसका डेरिवेटिव यहाँ पर है. So we put here log of sin e raised to x. Log of sin e raised to x t पुट करेंगे. Put this log of sin e raised to x is equal to t. The derivative of log of sin is 1 by sin e raised to x. The derivative of sin e raised to x is cos e raised to x. The derivative of e raised to x is e raised to x. dx is equal to dt. That is the differentiation. The first, it is a composite function. First log ka, then sin, then e raised to x. The derivative of log is what? 1 by sin e raised to x. The derivative of sin e raised to x is cos e raised to x. The derivative of e raised to x is e raised to x dx is equal to dt. This cos e raised to x upon sin e raised to x is cot e raised to x into e raised to x dx is equal to dt. So यही पार्ट मैंने पुट क्यों किया ये समझ में आना चाहिए. Why we put this पार्ट इज इक्वल टू t. इसका रीजन कब पता चलेगा? जब इसका डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे और जो भी डेरिवेटिव आया वो हमारे इंटीग्रैंड में होना चाहिए. दैट इज क्लियर. सो इट इज अ प्रैक्टिस के बाद ही आपको ये समझ में आएगा. प्रैक्टिस जितना करोगे उतना e रेस टू एक्स डिवाइडेड बाय, देखो e रेस टू एक्स डिवाइडेड बाय कॉट का रेसिप्रोकल इज व्हाट? tan e रेस टू एक्स dx is equal to dt. So this e raised to x upon tan e raised to x, देखो राउंड किया मैंने उसको, e raised to x upon tan e raised to x dx, e raised to x upon tan e raised to x dx. So replace this rounded part is equal to what? dt. So this is I is equal to, ये तो मैंने t पुट किया था, t dt बन गया t dt. इंटीग्रेशन ऑफ t इज व्हाट? t स्क्वायर बाय 2, उसकी पावर 1 है. t रेस टू 1 का इंटीग्रेशन t रेस टू 2 बाय 2. सो हियर 1 बाय 2 सेपरेट करो, स्प्लिट करो. t इज व्हाट? एक्चुअल लॉग ऑफ साइन ऑफ e रेस टू x स्क्वायर प्लस c. दिस इज आंसर ऑफ एग्जाम्पल नंबर 7. एग्जाम्पल नंबर 8 ट्राई करो. e रेस टू 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय e रेस टू 2x माइनस 1. यहाँ पर क्या पुट करने, आप सोच लो. यहाँ पर e रेस टू 2x का डेरिवेटिव आ सकता है 2 इंटू e रेस टू 2x. सिर्फ प्लस 1 का क्या करना है देखो. सो नेक्स्ट इज मैं थर्ड नंबर ट्राई करके देता हूँ. एग्जाम्पल नंबर 3 जहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री है. दैट इज एग्जाम्पल नंबर 9. इस 8 देन 9 I इज इक्वल टू साइन रेस टू 4x इंटू कॉस क्यूब x dx. साइन रेस टू 4x इंटू कॉस क्यूब x dx. सो साइन का डेरिवेटिव कॉस है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन है, दोनों भी यहाँ पर है. मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ से कॉस क्यूब में से एक कॉस स्प्लिट करता हूँ. ये साइन रेस टू 4x इंटू कॉस स्क्वायर x इंटू कॉस x. एक कॉस मैंने यहाँ से स्प्लिट किया. वाई? बिकॉज कॉस x इज अ डेरिवेटिव ऑफ साइन x. सो इट इज जजमेंट ओनली. दिस इज साइन रेस टू 4x. ये कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स करता हूं मैं इनटू कॉस एक्स डी एक्स. राइट, देन पुट हियर साइन एक्स इज इक्वल टू टी. इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे. कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी.
this cos x dx is equal to dt. So example I becomes ये t raised to 4, ये 1 minus t square और ये dt. ये मैंने sin x t पुट किया था. सो ये अब समझ में आ गया होगा कि ये cos क्यूब में से cos क्यूब स्प्लिट किया और वो cos स्क्वायर को मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर किया. देन वी पुट sin x इज इक्वल टू t. ओके, नाउ t रेज टू 4 माइनस t रेज टू 6 dt. मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया t रेज टू 4 से. इंटीग्रल ऑफ t रेज टू 4 इज t रेज टू 5 बाय 5 माइनस t raised to 7 by 7 plus c. t means sin x, sin raised to 5x minus sin raised to 7x plus c. देखो sin square x और sin x whole square are same. ये both same है, both are same. Okay, so this is example number 9. 7 और 9 हो गए. हम बाद में 10, 9, 11 पूरे सॉल्व करेंगे. लेट अस सी द एग्जांपल नंबर 10. अभी 9 हो गया, हमारा 10 एग्जांपल. I is equal to 1 upon 4x plus 5x raised to minus 11 dx. that is with respect to x. सो इम्पॉर्टेंट क्या है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्या पुट करना है, कौन सा डेरिवेटिव क्या है. वो ये सब आफ्टर प्रैक्टिस से समझ में आएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक इट नेगेटिव पावर एज पॉजिटिव बाय टेकिंग इट्स रेसिप्रोकल 5 अपॉन एक्स रेज टू 11 dx. नाउ ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 1 अपॉन 4x रेज टू 12 plus 5. And after this cross multiplication, this term goes to numerator. It is x raised to 11 dx. ये 4x into x raised to 11 is 4x raised to 12. ये plus 5. And after cross multiplication, this term denominator का denominator है transfer to the direct numerator. Okay. Now यहाँ पर मैं put करता हूँ complete denominator is equal to t. ये पुट करता हूँ. देखो इसका डेरिवेटिव क्या आता है. 12 4 जा 48 x रेज टू 11 प्लस 0 5 का डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू dt. 4 इंटू 12 दैट आएगा इधर नहीं 48 x रेज टू 12 माइनस 1 x रेज टू 11. अभी 48 कांस्टेंट टर्म ट्रांसफर करेंगे राइट साइड में. दैट इज 1 by 48 dt. 1 by 48 dt. So I is equal to 5. ये ट्रांसफर क्यों की, बिकॉज ये टर्म हमारे न्यूमरेटर में है x रेज टू 11 dx. x रेज टू 11 dx की जगह पे मैं क्या लिखूंगा 1 by 48 dt. 1 by 48 dt और ये डिनोमिनेटर मैंने t पुट किया था, so it is 1 by t. So 1 by 48 taking outside the integration 1 by t dt. Integration of 1 by t is log t because the derivative of log t is 1 by t. So what will be the answer? 1 by, it is 1 by 48 log of क्या पुट किया था हमने वो रिप्लेस करना है 4x raised to 12 plus 5 plus c. ये उसका आंसर. दिस इज आंसर ऑफ 10. ओके, सो स्टेप बाय स्टेप सब सिस्टमैटिक सॉल्व करेंगे. एग्जांपल नंबर 11 देखो यहाँ पर x रेज टू 9 सेक्स स्क्वायर x रेज टू 10. ये तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल है. x रेज टू 9 इंटू सेक्स स्क्वायर x रेज टू 10. सो यहाँ पर x रेज टू 10 ही हम पुट करेंगे t, बिकॉज x रेज टू 10 का डेरिवेटिव क्या होता है 10 इंटू एक्स रेज टू 9. तो x रेज टू 9 वहां पर टर्म है. सो हियर पुट x रेज टू 10 इज इक्वल टू t. सो दिस बिकम्स 10 इंटू एक्स रेज टू 9 dx is equal to dt. This is the differentiation.
सो 10 राइट साइड में ट्रांसफर होंगी, x रेस टू 9 dx इज इक्वल टू 1/10 dt. सो x रेस टू 9 dx, ये इसको राउंड किया मैंने, x रेस टू 9 dx इज व्हाट 1/10 dt. सो देयरफॉर I इज इक्वल टू, इट इज 1/10 dt. जो राउंड किया उसको 1/10 dt लिखा. इट इज sec square t बिकॉज वी ओनली पुट x रेस टू 10, हमने सिर्फ x रेस टू 10 ही पुट किया है t. सो बाकी sec square t बन जाएगा. sec square t किसका डेरिवेटिव है? tan का डेरिवेटिव है. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan t is sec square t. So obviously integration of sec square t is what? Tan t. It is a tan t plus c. So what is a tan t is what? x raised to 10. So x raised to 10 हमने पुट किया था 1/10 tan x raised to 10 plus c. So this is the solution of example number 11. हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत सारे फॉर्मूले भी डिफाइन किए थे. एक साइन कॉस का था हमारे पास अवेलेबल, लेकिन tan x, cot x, sec x एंड cosec x ये सब फॉर्मूले मैंने प्रूव करके दिए आपको. साइन x का इंटीग्रेशन क्या है? माइनस cos x. cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c. इंटीग्रेशन ऑफ tan x log of sec x प्लस c. इंटीग्रेशन ऑफ cot x log of sin x प्लस c. इंटीग्रेशन ऑफ sec x log of sec x plus tan x plus c or log of tan x by 2 plus pi by 4 plus c. And what is integration of cosec x? Integration of cosec x is log of cosec x minus cot x plus c. और दूसरा उसका और एक फॉर्मूला है, that is log of tan x by 2 plus c. सो ये जो चार फॉर्मूले, इंटीग्रेशन ऑफ tan, इंटीग्रेशन ऑफ cot, इंटीग्रेशन ऑफ sec, इंटीग्रेशन ऑफ cosec, ये हमने बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन प्रूव किया उसको. इज इट क्लियर? सो इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन की जो चार कोरोलरीज है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज समवेयर वी अप्लाई डायरेक्ट कोरोलरी. मीन्स सब्स्टिट्यूशन की यूज करने से सिवा हम कुछ एग्जाम्पल डायरेक्ट कोरोलरी अप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सो सी द एग्जाम्पल नंबर 12 नाउ. अभी 11 हो गया, 12. I is equal to e to the power 3 log x into x raised to 4 plus 1 minus 1 dx. x raised to 4 plus 1 whole raised to minus 1. अब इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं करेंगे, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे. सिंप्लीफाई कैसे करना देखो, ये 3 log के x के पावर में जाएगा, e raised to log x क्यूब. ये निगेटिव पावर पॉजिटिव हो जाएंगे बाय टेकिंग रेसिप्रोकल dx. बहुत ही सिंपल, राइट? नाउ e raised to log is only x cube. x cube into 1 divided by x raised to 4 plus 1, right? So e to the power log, इसका बेस e है, so that's why it is directly we write x cube. ये प्रॉपर्टी है लॉगरिथम की. 10 to the power log of x to the base 10 is equal to x. So जिस log का बेस नॉट गिवन, that logarithm called is natural logarithm base e. जिसका बेस e है वो नेचुरल लॉगरिथम होता है. अब ये पुट करेंगे हम t, पुट x raised to 4 plus 1 is equal to t. ये मैंने लर्न करके नहीं आया, मैं इसको लर्न करके क्यों ऐसा पढ़ के नहीं आया, ये लॉजिक डेवलप हो गया क्यों? प्रैक्टिस करके. ये व्हाई वी पुट x raised to 4 plus 1 is equal to t, बिकॉज x raised to 4 का डेरिवेटिव क्या होता है? 4x क्यूब होता है. यहाँ पर x क्यूब है, राइट? दैट इज द एडजस्टमेंट जजमेंट. सो हियर 4x क्यूब dx is equal to dt. 1 का डेरिवेटिव 0 होता है. x क्यूब dx is equal to 1/4 dt. I is equal to example numerator is 1/4 dt. ये 1/4 dt numerator, ये numerator. Denominator is 1/t. 1/t into 1/4 dt. So ये 1/4 outside. Integration of 1/t is log t plus c. सिर्फ आपको क्या करना है, t की जगह पर ये रखना है, x raised to 4 plus 1, right? Is it clear? This is example number 12.
स्टेप बाय स्टेप सब सॉल्व करेंगे, लेकिन ये जो आइडिया आपके क्लियर होनी चाहिए कि क्या पुट कर। यहाँ पर देखो मैंने पहले सिंप्लीफाई किया, ये स्टेप सिंप्लीफिकेशन किए। ये 3 पावर में गया, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम, m into log n is log n raised to m, right? This is example number 12. Now 13. 13 is this, I is equal to root tan x. बहुत खास एग्जाम्पल है, नॉट कॉमन थिंकिंग। डिफ्रेंशिएशन में ज़्यादा थिंक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बिकॉज वी कैन डायरेक्ट रैंडमली उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। सिर्फ आपको फंक्शन आइडेंटिफाई करना है, पैरामीट्रिक फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, ये हायर डिफ्रेंशिएशन है, लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ये सब सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, हर एक एग्जाम्पल में डिफरेंट लॉजिक है, सो वो लॉजिक आइडेंटिफाई करना है। देखो ऊपर रूट tan x है, sin x इंटू cos x है, नॉट कॉमन एग्जाम्पल, वेरी वेरी रेयर एग्जाम्पल। सो मैं देखो यहाँ पर क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ दोनों साइड से cos square x, डिवाइड बाय cos square x ऑन बोथ साइड मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अंडर रूट tan x डिवाइडेड बाय cos square x होल डिवाइडेड बाय sin x into cos x divided by cos square x dx. ये एग्जाम्पल, राइट? सो फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, डिवाइड ऑन बोथ साइड बाय cos square x। कुछ ना कुछ दिमाग में होगा, इसलिए मैंने cos square x के डिवाइड किया है। सो आपको ये 2 स्टेप के बाद इमीडिएटली समझ में आएगा। ये cos x कैंसल, ये अंडर रूट tan x न्यूमरेटर में 1 by cos square x is sec square x divided by sin x by cos x is what, tan x। देखो cos square x से डिवाइड करने के बाद sec square x टर्म आएंगे, बिकॉज 1 by cos square x is what, sec square x, और sec square x किसका डेरिवेटिव है, tan x का डेरिवेटिव। दैट्स वाई हमें tan x पुट करना है, t ये है। देखो रूट tan x by tan x, इट इज 1 by tan x, 1 by root tan x। root x by x is 1 by root x, under root sin x by sin x is 1 by root sin x. It is a fundamental concept of mathematics. We can prove this by using rationalization. हम rationalize करेंगे उसको, immediately वो आ जाएगा। लेकिन कभी याद रखना, ऊपर नीचे सेम टर्म है, ऊपर रूट है तो that becomes 1 by root x, right? सो देखो tan x के ऊपर क्या है, डेरिवेटिव है। सो दिस इज अ कोरोलरी नंबर 4। ऊपर f डैश ऑफ x है, नीचे रूट f ऑफ x है। f डैश ऑफ x रूट f ऑफ x दैट इज इक्वल टू व्हाट, 2 रूट f ऑफ x प्लस c उसका इंटीग्रल। सो दिस इज कोरोलरी नंबर 4, f डैश ऑफ x अपॉन रूट f ऑफ x dx इज इक्वल टू 2 रूट f ऑफ x प्लस c। tan का डेरिवेटिव sec square x, tan x is a function, f dash of x is sec square x. So what is answer? 2 root tan x plus c. 2 root tan x plus c. This is example number 13. After 13 example, look at the example number 14. अब 14 example थोड़ा different, ये भी different example है। I is equal to x minus 1 whole square डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। सो पहले यहाँ पर तो कोई ऐसा फैक्टर नहीं जो पुट कर सकते हैं हम t, उसका डेरिवेटिव यहाँ पर नहीं। x स्क्वायर प्लस 1 अगर हमने t पुट किया तो उसका 2x होता है डेरिवेटिव, ऊपर 2x भी नहीं है। सो पहले ऊपर सॉल्व करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर dx, राइट? आप देखो इसको x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर सेपरेट डिवाइड किया, 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइड किया सेपरेटली। x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ये माइनस 2x फैक्टर सेपरेट लिया, माइनस 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 कैंसल, taking separate integral,
एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब ये डायरेक्ट इंटीग्रेबल है, ये किसका डेरिवेटिव है? ये tan इनवर्स x का डेरिवेटिव है। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x? इट इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो दैट्स वाई 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? tan इनवर्स x, राइट। बट व्हाट अबाउट दिस? यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 t पुट करना पड़ेगा, जिसका डेरिवेटिव 2x है। ओके, सो हियर इसे भी यहाँ पर मैं पुट करता हूँ, ये तो tan इनवर्स x बन गया, ये tan इनवर्स x। यहाँ पर मैंने पुट किया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, उसका डेरिवेटिव 2x dx इज इक्वल टू डी टी, 2x dx इज इक्वल टू डी टी। सो देयरफॉर I इज इक्वल टू ये tan इनवर्स x माइनस ये 2x dx इज व्हाट? dt। ये 2x dx is dt डिवाइडेड बाय 1 बाय टी स्क्वायर। ये 1 बाय टी स्क्वायर है, ये t पुट किया मैंने, सो 1 बाय टी स्क्वायर 2x dx is dt। सो ये जो है tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt। सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय x? इट इज माइनस 1 बाय x स्क्वायर। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ minus 1 by x square? Obviously 1 by x dx plus 1 by x dx. It is obvious thing. 1 by x का डेरिवेटिव minus 1 by x square, minus 1 by x square का इंटीग्रेशन 1 by x dx. So here this is tan inverse x plus 1 by t plus c. प्लस क्यों आ रहा है? -1 by t स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना है? प्लस 1 बाय टी है। सो दिस इज अ tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, ये उसका आंसर। बिकॉज हमने पुट क्या किया था? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी। हर एक एग्जाम्पल डिफरेंट है, जो 13 में लॉजिक था वो 14 में नहीं है, जो 13 में लॉजिक था वो 12 में नहीं है, जो 12 में था वो 11 में नहीं है, लेकिन सबका बेस क्या है? सब ये इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन है, लेकिन नॉट इमीडिएटली, इट डिपेंड्स एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल। यहाँ पर मैंने पहले ऊपर को सॉल्व किया, ए एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, उसको सेपरेट डिवाइड किया, बट माइनस 2x सेपरेट निकाल के, राइट। और ये सब आगे की 2-4 स्टेप हमारे दिमाग में रेडी होना चाहिए, और इट एब्सोल्युटली डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी ये लॉजिक डेवलप हो जाएगा। ये 3.2 एक्सरसाइज है, 3.2, इसके स्टार्ट में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, और जो सॉल्व एग्जाम्पल है वो आपको करना है। दिस एग्जाम्पल नंबर व्हाट? दिस इज 14 एग्जाम्पल। अब तो 15-16 इमीडिएटली हम लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 15-16, so look at the example number 15 now. एग्जाम्पल नंबर 15, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ऊपर क्या है? 2 sin x इंटू कॉस एक्स। अब देखो ये इमीडिएटली आपको समझ में आना चाहिए कि 2 sin x इंटू कॉस एक्स ये डेरिवेटिव किसका है? 2 sin x इंटू कॉस एक्स। थिंकिंग कैसे करना, किस एंगल से उसको सोचना, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। 3 cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 sin स्क्वायर एक्स, ये जो 2 sin x इंटू कॉस एक्स है, डेरिवेटिव है साइन स्क्वायर एक्स का। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स? 2 sin x इंटू कॉस एक्स। ये सेम डेरिवेटिव कॉस स्क्वायर एक्स का भी है। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स? 2 cos x इंटू माइनस साइन एक्स, तो सेम डेरिवेटिव है। साइन स्क्वायर का और कॉस स्क्वायर का डेरिवेटिव सेम है, सिर्फ चेंज इन साइन। सो बेस्ट वे हम क्या करेंगे? इस कॉस स्क्वायर को चेंज करेंगे, आइदर कॉस स्क्वायर को चेंज करो, नहीं तो साइन स्क्वायर को चेंज करो। कौन सा किया तो सेम आ जाएगा।
कॉस स्क्वायर एक्स की फंडामेंटल आइडेंटिटी क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स. दिस इज वन ऑफ द सोल्यूशन. अगर आप साइन स्क्वायर को चेंज करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स मीन्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, देन यू कैन पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी. सो दिस इज 2 sin x into cos x divided by 3 minus 3 sin square x plus 4 sin square x dx. ये सब क्यों कर रहा मैं यहाँ पर? बिकॉज जो ऊपर टर्म है 2 sin x into cos x वो डेरिवेटिव है sin square x का. देखो क्या हुआ है, 4 sin square x माइनस 3 sin square x इज sin square x, ये प्लस है. अब देखो टोटल डिनोमिनेटर जो है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर है. पुट भी किया तो भी चलेगा, लेकिन ट्राई टू अप्लाई कोरोलरी. जब भी यूज पॉसिबल है तब भी उसको यूज कर सकते हैं. दिस इज एफ ऑफ एक्स, दिस इज एफ डैश ऑफ एक्स. 3 का डेरिवेटिव तो 0 होता है. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ sin square x? 2 sin x into cos x. एफ डैश ऑफ x, एफ ऑफ x. Integration is what? Log of f of x plus c. So what is the corollary number 3rd here? Numerator f dash of x, denominator f of x. Integral of such is what? Log of denominator plus c. Log of f of x plus c. So here answer is log of 3 plus sin square x plus c. By substitution भी हम यह सॉल्व कर सकते हैं. तुम डिनोमिनेटर इज इक्वल टू टी पुट करो, टोटल डिनोमिनेटर टी पुट करो, वही आंसर आ जाएगा. दिस एग्जांपल नंबर 15. सो आफ्टर 15 लुक एट द एग्जांपल नंबर 16. एग्जांपल नंबर 16 क्या है? रूट एक्स प्लस क्यू रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब है. सो रूट एक्स को एक्स रेज टू हाफ किया, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब को एक्स रेज टू 3/2 हुआ. सो यहाँ पर देखो एक थोड़ा एक अलग जजमेंट है यहाँ पर जो डिफरेंट है. ये जो पावर है 1/2 और 3/2, इसका एलसीएम लेना है हमें. 1/2 प्लस 3/2 इज 4/2. 4/2 कितना होता है? 2 होता है. सो वी पुट हियर x इज इक्वल टू टी स्क्वायर. x इज इक्वल टू व्हाट? टी स्क्वायर. वाई टी स्क्वायर क्यों पुट किया? ये 1/2 है, ये 3/2 है. अगर समझो यहाँ पर क्यूब रूट था, यहाँ पर स्क्वायर रूट था. 1/2 और 1/3 है सपोज फॉर एग्जाम्पल. यहाँ पर स्क्वायर रूट है, यहाँ पर क्यूब रूट है, राइट. सो इट इज एक्स रेज टू हाफ बन जाएगा ये, और ये एक्स रेज टू 1/3 हो जाएगा. सो इसका एलसीएम कितना है? 1/6 हो जाएगा. 1/2 और 1/3 पावर का एलसीएम कितना है? 1/2 प्लस 1/3 1/6 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद वो 6 हो जाएगा. सो दैट टाइम x इज इक्वल टू टी रेज टू 6 हमें पुट करना चाहिए. यहाँ पर कितना है? 1/2 प्लस 3/2 इट इज अ 4/2. 4/2 मीन्स 2. सो पुट हियर x इज इक्वल टू व्हाट? टी स्क्वायर. ये बहुत रेयर ऑफ रेयर एडजस्टमेंट है, ऐसे एग्जाम्पल में है. यहाँ पर हम पुट करेंगे x रेज टू टी रेज x इज इक्वल टू टी रेज टू 6, और यहाँ पुट करेंगे x इज इक्वल टू टी स्क्वायर. रीजन बिहाइंड दैट इज व्हाट? द एलसीएम ऑफ पावर ऑफ x is 2. So that's why x is equal to t square. Derivative is what? dx is equal to 2t dt. So I is equal to 1 dx. dx की जगह पर क्या लिखेंगे? 2t dt. x रेज टू हाफ है, x रेज टू हाफ. x की जगह पर क्या लिखना है? हमें t स्क्वायर लिखना है. थोड़ा सिस्टमेटिक लिखता हूं. t स्क्वायर रेज टू हाफ प्लस टी स्क्वायर रेज टू 3/2 dt. ऊपर 2t dt, ये 2 कैंसिल, ये t क्यूब. ये 2 और ये 2 कैंसिल, मल्टीप्लाई होता है पावर का. ये 2 और ये 2 भी कैंसिल, मल्टीप्लाई और डिवाइड कैंसिल. सो t प्लस टी क्यूब. टेकिंग t कॉमन फ्रॉम डिनोमिनेटर पॉसिबल है वहाँ पर. अगर t हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? 1 प्लस टी स्क्वायर. ये t कैंसिल. सो व्हाट इज रिमेनिंग हियर? 2 dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर. ये 2 आउटसाइड, 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt. और 1/1 प्लस टी स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है? tan इनवर्स t का डेरिवेटिव है.
सो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, tan इनवर्स t, 2 इंटू tan इनवर्स t। अगर x इज इक्वल टू टी स्क्वायर है, सो व्हाट इज t, रूट x इज इक्वल टू t। रूट x कितना है, t है। x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, सो रूट x इज इक्वल टू कितना, t। सो आंसर क्या आएगा, 2 इंटू tan इनवर्स रूट x प्लस c। दिस इज अ सोल्यूशन। ओके, सो विल टेक आफ्टर दिस नंबर 17। ये होगा 16, सो अभी इसके बाद 17। ओके, 16 तक हुआ है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। Now look at the 17 and 18 नंबर एग्जाम्पल। अब 17 नंबर तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ आपको ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। व्हाट इज एग्जाम्पल नंबर 17, 10 इंटू एक्स रेस टू 9 प्लस 10 टू द पावर x इंटू log 10 डिवाइडेड बाय 10 रेस टू x प्लस x रेस टू 10 dx। 10 रेस टू x प्लस x रेस टू 10 dx। सो टोटल डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर है। 10 रेस टू एक्स का डेरिवेटिव कितना है, 10 रेस टू एक्स इंटू लॉग 10। एक्स रेस टू 10 का कितना है, 10 इंटू एक्स रेस टू 9। टोटल डिनोमिनेटर के ऊपर डेरिवेटिव है। आप वो रिजल्ट लिखो। इसका सिंगल स्टेप में आंसर है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी, लॉग ऑफ 10 रेस टू एक्स प्लस एक्स रेस टू 10 प्लस सी। इसके बाद 18 नंबर एग्जाम्पल। 18 आई इज इक्वल टू x रेस टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस 4x रेस टू n dx। एग्जाम्पल नंबर 18 है, राइट। 17 तो बहुत सिंपल था, 18 देखो क्या है, x रेस टू n माइनस 1। तो ये पुट करेंगे t, जो भी टर्म रूट में हो पुट करेंगे हम t। x इज दैट इज व्हाट 1 प्लस x 4x रेस टू n इज इक्वल टू t। 1 प्लस 4 इंटू एक्स रेस टू n इज इक्वल टू t। 1 का डेरिवेटिव 0, ये 4। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू n, n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1 dx इमीडिएटली लेफ्ट साइड में लिखेंगे इज इक्वल टू dt। ये 4n की जरूरत नहीं, कांस्टेंट टर्म है वो राइट साइड में शिफ्ट करो, 1 बाय 4n dt। ये 4n कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट हम राइट में शिफ्ट किया। x रेस टू n माइनस 1 dx इज इक्वल टू 1 बाय 4n dt। सो लुक एट द आंसर, I इज इक्वल टू, सो दिस राउंडेड पार्ट इज 1 बाय 4n dt। सो इट इज 1 बाय 4n dt and 1 बाय रूट t, 1 बाय रूट t। ये तो राउंड किया हुआ पार्ट क्या है, 1 बाय 4n dt है। ये कितना रूट t है, सो 1 बाय 4 आउटसाइड में लेंगे हम, 1 बाय 4n 1 बाय रूट t dt। रूट t का कितना डेरिवेटिव, 1 बाय रूट t का 2 रूट t होता है, 2 रूट t। ये 2 रूट t कहाँ से आ गया, t का डेरिवेटिव 1 है ऊपर, f डैश ऑफ x रूट f ऑफ x। व्हाट इज इंटीग्रेशन, 2 रूट f ऑफ x प्लस c। ये 2 और ये 2 कैंसल, सो इट इज 1 बाय 2n रूट t इज 1 प्लस 4x रेस टू n प्लस c। दिस इज आंसर ऑफ एग्जाम्पल नंबर 18। So okay, today is sufficient up to 18 examples. So also there are lots of example in this exercise. We'll take on next video lecture. So today we'll stop here. Thank you very much.